Hello everyone and welcome to the new chapter arrays in Java. ठीक है, so in this chapter this is one of the most important chapter for ICSE board. Okay, why it is most important? Because see यहाँ से एक programming हमेशा रहेगा, that is of 15 marks, and at times you get two programs from this arrays concept only, 15 marks. Okay, one program will be from your searching sorting and other will be some other program related to arrays. Okay, so directly 30 marks you get from here, and most of the time what will happen, there will be one program will be there, and then there will be some MCQ type of questions. It will be asked, some short questions will be asked in section A and B, right there, that way. So this chapter carries a weightage of 20 to 30 marks at least. Okay, so you need to be very attentive in all the lectures that you are going to watch for arrays, right? So I have divided certain points in the array that we need to actually do. So this would be a very basic understanding, that this understanding you need to have. Okay, इतना समझ आपको होना ही पड़ेगा, तभी आप एरेज बना पाएंगे. ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एरे. ठीक है, अब डेफिनेशन याद करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको समझना. ठीक है, सिंटैक्स एरे को कैसे लिखते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसका कुछ एग्जाम्पल्स होगा. ठीक है, ठीक है, एरे के बेसिस पे बहुत सारा आउटपुट क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, राइट. लाइक दे विल आस्क यू व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम एंड दे विल गिव यू एन एरे विद इन द प्रोग्राम. ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, हाउ टू टेक इनपुट इनटू एन एरे. ठीक है, इनपुट कैसे लेना है, आउटपुट कैसे देना है, ट्रैवर्स कैसे करना है, हर एक एरे का हर एक एलिमेंट के पास कैसे जाना है, ये तीनों कंसेप्ट आपको पूरा समझ जाना चाहिए. ठीक है, इसको याद ही नहीं करना है, समझ जाना चाहिए. समझना का मतलब हुआ ऐसा समझना, सो दैट यू आर एबल टू डू इट योरसेल्फ ब्लाइंडली विदाउट लर्निंग इट. ओके, बिकॉज ये तीनों चीज, इनपुट लेना, आउटपुट लेना और ट्रैवर्सिंग करना एरे का हर एक एलिमेंट के पास. ट्रैवर्सिंग मीन्स टू गो टू टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द एरे फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड. ओके, सो दैट पर्टिकुलर नॉलेज यू नीड टू हैव. Okay, and then searching, sorting, those things, that for them I am there, right. So actually if you see, then we do not have this deletion, merging, these things they will not ask you. Okay, searching and sorting is the key thing that they will ask you. Okay, insertion is nothing but the input taking in array, and then there will be different programs that will involve array concept. like एक program तो यहाँ पे आपका हो गया searching and sorting, here there are 4 programs. Okay, and उन 4 में से एक program हमेशा आता ही है. ठीक है, and then there will be one more program called program involved with array concepts, like max, min, maximum, minimum number, or you have to do the sum of each number. There will be a lot of things you will understand first. Okay, चलो, तो let us quickly jump into the definition of array. ठीक है, तो arrays exactly होते क्या है. ठीक है, अभी तक हम इसको समझो एक चीज. when I had to suppose if I have to work with a number, right. suppose we had to work with a number, then what we needs to do, int a, right, equals to 5. suppose I had to take two numbers, then I had to declare two variables, right, int a and b. suppose I have to add 5 numbers, then what I will do, then I will have to declare 5 numbers, right, 7 2 3 whatever. Okay, so I have to declare a lot of variables, right. so every time, but all are of integer type only, right, all are of integer type only, but still I have to declare a lot of variables, so a lot of space goes out there, right. तो बहुत सारा स्पेस मेरा क्या हो रहा है, मिस हो रहा है. लाइक इंट ए, इंट बी, है ना, इस तरह से सी डी, है ना, ई, राइट. सो इस तरह से बहुत सारा क्या जा रहा है, स्पेस मेरा चला जा रहा है. इतना सारा वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ रहा है, लॉट ऑफ वेरिएबल्स आई हैव टू डिक्लेयर. सो सिंस एंड यू सी ऑल आर ऑफ सेम डेटा टाइप, इंटीजर टाइप का ही डेटा है. ठीक है, तो जब हमको पता है कि सब एक ही डेटा टाइप का है, तो उसको हम किसी एक के अंदर ही क्यों नहीं ले लिए. तो एरे कुछ नहीं होता, एरे इज अ कलेक्शन. ओके, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप. ठीक है, सेम डेटा टाइप. ठीक है, सो लेट्स सेकेंड सी, तो क्या होगा, ये हो गया आपका एरे. ठीक है, ये आपका एरे हो गया. तो अब एक इंटीजर एरे बनाएंगे ARR नाम का. ठीक है, एक ही एरे बनाएंगे और एरे के अंदर ही सब आ जाएगा, 5 7 3 13 4, और भी मान लेते कुछ है 9. ठीक है, ये इंटीजर टाइप का एरे है, तो इंटीजर वैल्यूज ही रहेगा. तो हम लोग इस एग्जांपल से क्या समझे, इस एग्जांपल से एरे का डेफिनेशन समझ गए. और ये देखो एक लाइन में है ना, एक लाइन में, इसको क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं ना, एक लाइन में, राइट. तो अब इस एग्जांपल से हम लोग क्या समझ, देखो यहाँ पे बहुत सारा इंटीजर टाइप का था, उसको एक ही वेरिएबल के अंदर अब ला दिए, एक ही साथ एक ही लाइन में ले लिए. हर बार 5-6 वेरिएबल डिक्लेयर करने का जरूरत, आई डिडंट हैड टू डू दैट, राइट.
जरूरत नहीं पड़ा। तो इसी से हमको क्या पता चल गया, एरे का डेफिनेशन पता चल गया। एरे का डेफिनेशन क्या हो जाता है, आई एम राइटिंग इट हियर फॉर यू, ओके। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। सबसे पहला बात तो यही पे क्लियर हो जाता है, क्योंकि एक लाइन पे देख रहे हो ना, एक लाइन पे चल रहा है, तो इट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। इट होल्ड सेम डेटा टाइप एलिमेंट। अगर एक इंटीजर एरे है तो उसके अंदर एक ही तरह का डेटा एलिमेंट, क्योंकि देखो जब हम एरे को डिक्लेयर करेंगे, एरे का नाम देंगे ARR, और जब भी किसी वेरिएबल का नाम देते हैं तो उसके पहले क्या, आई हैव टू गिव द डेटा टाइप। So as soon as I have to give the data type, so in front of one variable I can give only one kind of data type, right? Either this variable will be integer or float or boolean or string. So ये int हो गया, तो ये फिक्स हो गया कि ये array का नाम ARR है, ठीक है, और इसके अंदर integer ही जाएगा, तो 5 7 6, ठीक है, अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम। देखो देर आर अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स, 5 7 3 और 13। पहले क्या होता था, पहले अलग अलग वेरिएबल लेना पड़ता था हर एक के लिए, लेकिन अब वो सारा का सारा एक ही वेरिएबल नेम ARR के अंदर चला गया, ठीक है। और इन अ कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, कंटिन्यू चलते रहता है, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक, और आना है तो और आप ऐसे करके इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। इन अ कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड एरे, ओके। और भी एरे का बहुत सारा पॉइंट होने वाला है अभी, ठीक है, एरे, ठीक है। इन एरे द फर्स्ट इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, फर्स्ट इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक है। तो इंडेक्सिंग, ठीक है, तो इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 मतलब कि ये फर्स्ट पोजीशन नहीं है, ये क्या है, 0th पोजीशन है, ये है फर्स्ट पोजीशन, ये है सेकंड पोजीशन, ये है थर्ड पोजीशन, ये है फोर्थ, और ये है फिफ्थ, ठीक है। तो अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रेफर करना है तो आप कैसे रेफर करोगे, एरे 3। अगर हम एरे 3 लिखें तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या आंसर आएगा यहाँ पे, एरे अगर 3 लिखे तो मेरा इसमें आंसर क्या आने वाला है, देखो 0 1 2 3, 13 आएगा आंसर। मतलब कि हम 13th वाला जो एलिमेंट है इसको रेफर कर रहे हैं, ठीक है। When I write array equals to 3, it means I am referring to the 13th वाला element. If I write array 0, it means I am referring to the very first element of the array, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यू में पूछ सकता है आपको, ठीक है, कि हाउ डू यू रेफर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, तो एरे ऑफ 0, क्योंकि एरे का काउंटिंग 0 से स्टार्ट होता है, रिमेंबर दिस, द काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 5, ठीक है। समझ में आ रहा है चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है क्या, अगर आपसे बोल दे एरे, क्योंकि इसका साइज अगर आप देखो तो ना 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6, अगर हम इसको 6 दे दें लेंथ में, ठीक है, 6, तो क्या हो जाएगा, 9 देगा, नहीं, 0 से काउंट करता है, राइट। तो 0 1 2 3 4 5, देयर इज नो सिक्स्थ एलिमेंट। when it's trying to go to sixth, it is getting out of the boundary, you see, this is the boundary and it is getting out of the boundary, so it will give error, what error, out of bounds exception, okay, out of bound exception, so this error will come because ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, लास्ट बाउंड्री से बाहर ही निकल गया, ठीक है। so this is out of bounds error exception you will get, okay. So this is about arrays, okay. This is a basic introduction that I am just trying to give you, ठीक, समझ में आया। इसी तरह क्या हो सकता है, इसी तरह दिल कैन बी स्ट्रिंग एरे, जरूरी थोड़ी है कि यही एरे होगा, इसी तरह क्या हो सकता है, स्ट्रिंग नाम का भी एरे हो सकता है, स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग नाम का भी एरे का नाम इस क्या हो सकता है, स्ट्रिंग नेम, ठीक है, इसमें नेम सब स्टोर कर रहे हैं, तो एक एरे का नाम ले लिए जिसका नाम क्या है, नेम है ना, तो इसके अंदर क्या हो सकता है, सारा स्ट्रिंग सब स्टोर हो सकता है, राइट, ठीक है। तो इसका स्ट्रिंग सब स्टोर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, किसी का नाम सोनू है, प्रिया है, ठीक है, रितेश है, ठीक है, ठीक, सो यू गेट दिस, तो यहाँ पे हो गया, समझ में आया। it can be string type, it can be character type, it can be float type, it can be you can put anything on that, right. so array, but it has to be of single data type, okay. string है तो string ही सब, सारा का सारा वर्ड, सारा का सारा string ही होगा, कैरेक्टर है तो सारा सारा कैरेक्टर ही होगा, ठीक है। you cannot mix the data type in the array, ठीक है, that's the default, that's the faulty thing you can consider, okay.
समझ में आया? अब एरे आपका वैसे दो टाइप का होता है, एक होता है सिंगल डायमेंशनल एरे, सिंगल डायमेंशनल, एक होता है डबल डायमेंशनल एरे, ठीक है, 2D एरे। 2D एरे में रो और कॉलम दोनों आएगा, ठीक है, और इसमें क्या आएगा, सिर्फ एक रो आता है, ठीक है, इस तरह से रो आता है, ठीक है ना। तो ये आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं है, जितना भी ज़्यादा प्रोग्राम आएगा वो सब 1D का ऐसे बहुत सारा आएगा, और 2D में देर आर ओनली 2 और 3 मैक्सिमम काइंड ऑफ प्रोग्राम्स दैट दे कैन आस्क, एंड दैट आई विल लेट यू नो, ओके। लेकिन उतना आता भी नहीं है कभी, उतना बोर्ड्स में कभी आया नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग क्या समझते हैं एरे का, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या समझना है, एरे का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, राइट, एरे का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। सो एरे डिक्लेरेशन वी आर गोइंग टू डू, सो जैसे कि अगर आपको इंटीजर एरे करना है, ठीक है, तो आप लिख देंगे इंट ए, और ये सिंबल आप बनाएंगे, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू इंट 10, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सारा चीज़ एक एक करके बता देते, ठीक है। ये क्या है, डेटा टाइप है, ठीक है, कि किस तरह का एरे बनेगा, ये एरे जो भी हम बना रहे हैं वो कैसा डेटा स्टोर करेगा। ये क्या हुआ, एरे का नेम हुआ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है, सिंबल है कि इस, तो इससे पता चलता है कंपाइलर को कि ये जो वेरिएबल है ये एक एरे टाइप का वेरिएबल है, ठीक है, सिंबल, ठीक है। और ये तो आपका क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको छोड़ो। ये न्यू क्या है, कीवर्ड है, ठीक ना, कीवर्ड है, जैसे कि हम लोग वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते उस टाइम कीवर्ड है। वापस से अगेन डेटा टाइप लिखना है, और अगेन डेटा टाइप लिखना है, उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये जो है ये क्या है, साइज, कितना बड़ा एरे बनाना है। तो ये तो इससे क्या बनेगा, एक एरे बनेगा, राइट, वन एरे विल बी क्रिएटेड ऑफ साइज व्हाट, एरे नेम्ड ए विल बी क्रिएटेड ऑफ साइज 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसमें 10 एलिमेंट्स स्टोर होंगे, ठीक ना। सो दिस इज व्हाट it's called. So suppose you have to declare an array called suppose a string, I told you, integer I already told you, let us declare something called character, okay. So it will be a character array, so char, only character variables will be there, char x, okay, equals to new char, and suppose पांच characters स्टोर करना है, तो 5, ठीक है। So sometimes you will see this box is coming this side also this side, so don't worry, both the ways are correct, okay. So make a habit of using this, okay, because see, first what do we do, first we define the data type, then we give the name, variable name, and then we will give the symbol, okay। तो यही हम लोग का यही तरीका रहेगा एरेस को डिक्लेयर करने का, ठीक है। सो एरे डिक्लेयर हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से एरेस के ऊपर थोड़ा मोड़ा समझते हैं, ठीक है, अपना समझ को बिल्ड करते हैं।